Hello guys, welcome to Bioguru. Now we will discuss about the sex determination. In most of the animals, a pair of chromosomes is responsible for the determination of sex. जैसे हमारे अंदर XX and XY chromosomes होते हैं, वैसे ही अदर organisms के अंदर भी सेक्स chromosomes होते हैं जो मेल और फीमेल के डिटर्मिनेशन के लिए जरूरी है. These two chromosomes are called sex chromosomes. इनको sex chromosome कहेंगे और आप इसे allosomes भी कह सकते हैं. और जो सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा जो अदर क्रोमोसोम्स होते हैं दीज आर कॉल्ड ऑटोसोम्स. सो वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम और 23 में से 22 हैं आपके ऑटोसोम्स एंड 1 इज एलोसोम. तो मेल और फीमेल, जैसे हम ह्यूमंस की अगर बात करते हैं तो मेल 2 टाइप के गैमीट्स फॉर्म करेगा एक्स एंड वाई टाइप ऑफ स्पर्म्स और फीमेल केवल एक ही टाइप का एग फॉर्म करेगी ऑटोसोम्स प्लस एक्स. अब ये डिपेंड करता है फ्यूजन पर, फर्टिलाइजेशन पर. अगर x के साथ x फर्टिलाइज करेगा XX बनेगा, इट इज फीमेल. और x के साथ y फर्टिलाइज करेगा, इट इज XY, दैट इज मेल. सो अब X क्रोमोसोम्स को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था हैंकिंग ने एंड ऑब्जर्व दैट 6 क्रोमोसोम्स वर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ईच अदर. तो इन्होंने ऑब्जर्व किया मियोसिस को, सो ट्रेस्ड आउट द specific nuclear structure all through spermatogenesis in the west. तो स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोसिस को ऑब्जर्व किया गया और देखा मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होती है, गैमीट्स ट्रांसफर होंगे और जब गैमीट्स ट्रांसफर होते हैं तो कुछ गैमीट्स में एक्स क्रोमोसोम आता है और कुछ गैमीट्स में एक्स क्रोमोसोम नहीं आता. So he observed that 50% of the spermatozoa received this structure after spermatogenesis, whereas 50% did not receive it. So, later investigations by other scientists concluded that the X body of Hanking was in fact a chromosome. And इसके बाद Y chromosome की स्टडी हुई. So, Stevens and Wilson revealed that the chromosomal basis of sex depended on the presence or absence of the Y chromosome. So, identified the Y chromosome and observed in Tenebrae molitor, now known as the sex determining chromosome. तो Y chromosome को sex determining chromosome कहा गया. अब देखिए होमोगैमेटिक एंड हेट्रोगैमेटिक कंडीशन. होमोगैमेटिक का मतलब ये है कि अगर एक इंडिविजुअल एक ही टाइप के गैमीट्स फॉर्म करेगा, इट इज कॉल्ड होमोगैमेट. जैसे फीमेल एक्स टाइप के ही गैमीट फॉर्म करेगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होमोगैमेटिक. एक्स है, सब एक्स होंगे. So in an individual, if the two sex chromosomes are similar, XX, it is called homogametic. Gamete produced are similar. So heterogametic condition. In heterogametic, there are 2 types of gametes. जैसे मान लीजिए sperms हैं, X type of sperms and Y type of sperms. So in an individual, if the 2 sex chromosomes are different, it is called heterogametic. So in some cases, only one sex chromosome XO may be present. और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है केवल दोनों में से केवल एक ही सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. Gametes produced are dissimilar, is heterogametic, and karyotype of humans we have total 23 pair of chromosome. 23 pair of chromosomes में से जो 22 pair है these are autosomes and the last pair 23rd pair is called sex chromosome or allosome. MCQs. Sex determination is done by autosomes, allosomes, hormones or pheromones. Yeah, it is allosomes. That's good. Now heterogametic sex determination. Heterogametic अगर 2 टाइप के gametes फॉर्म करेंगे, 2 अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे. So male sex determination is heterogametic condition. क्यों? क्योंकि जो मेल्स हैं, मेल्स में XY कंडीशन है. XY heterogametic condition. So males are heterogametic. For example, males produce dissimilar gametes and females are homogametic because वो एक ही टाइप के gametes फॉर्म करेंगे, X type of gametes. So now XX and XO type, XX and XY type. So now McClung ने XX and XO पैटर्न को डिस्कवर किया था. So observed in, मतलब हम XX and XO पैटर्न की बात करेंगे, it is observed in the grasshopper. So male sex determined by the unpaired X chromosome. मतलब इसमें से केवल एक ही, अगर मेल है तो मेल में केवल एक ही सेक्स क्रोमोसोम होगा. Grasshopper, bugs, cockroaches. And the karyotype will be, females के अंदर क्या होगा? AA is autosomes and XX
सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होगा। और मेल्स के अंदर ऑटोसोम प्लस एक्स ओ, ओ मतलब केवल एक सिंगल ही उसमें सेक्स क्रोमोसोम है। सो वेयर एज स्पर्म्स आर ऑफ टू टाइप्स, हाफ, देखिए अब इसमें क्या था कि वन हाफ ऑफ स्पर्म्स हैव ए एक्स एंड अदर हाफ स्पर्म्स हैव ए, मतलब ए फॉर ऑटोजोम्स, ऑटोजोम्स के साथ एक्स क्रोमोसोम है 50% में, और ऑटोजोम्स ही है, सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं अदर 50% में। सो ऑल ओवा कंटेन्स ए एक्स, लेकिन जो ओवा है सबके अंदर क्या है, ए एक्स, ए फॉर ऑटोजोम्स, एक्स फॉर एक्स क्रोमोसोम। द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म दैट फर्टिलाइजेस द ओवम। अब ये डिपेंड करता है कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, तो इसका जो डिटर्मिनेशन है वो कब होगा, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म दैट फर्टिलाइजेस द ओवम। सो स्पर्म फर्टिलाइजेस द ओवम। देखिए एक्स 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 ओ टाइप है, डिप्लॉइड है, एक्स 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 ओ। मेल ने केवल दो टाइप के, एक क्या है 50% स्पर्म्स में सेक्स क्रोमोसोम आएगा और 50% में सेक्स क्रोमोसोम नहीं आएगा, बट फीमेल सिर्फ एक्स टाइप के ही एक्स को फॉर्म करेगी। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द फर्टिलाइजेशन। अगर एक्स के साथ एक्स फर्टिलाइज करेगा, मतलब डबल एक्स आता है, डबल सेक्स क्रोमोसोम आते हैं, देन फीमेल का फॉर्मेशन होगा, और अगर सिंगल एक्स आता है देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेल। एमसीक्यू टाइम। मेल heterogamitic sex determination among the following is XXXO and XXXY method, ZO ZW and ZW ZZ methods, XXXO ZW ZZ, XXXY and ZW ZZ method. It is XXXO. So now XXXY, अभी हमने डिस्कस किया XXXO method. Now we will discuss about the XX and XY. It is heterogamitic. So females and males produce same number of chromosome. देखिए number of chromosome same है किसमें, XX and XY pattern में. So in human beings and some insect such as Drosophila, तो ये सेम पैटर्न जो ह्यूमंस में है वो ड्रोसोफिला के अंदर भी है। सो मेल हेट्रोगैमेटिक बिकॉज मेल टू टाइप के गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं। सो मेल्स हैव XY chromosomes and females have XX chromosome. So male produce two types of sperms. टू टाइप ऑफ स्पर्म का मतलब क्या हुआ, एक 50% जो X रिसीव करेंगे एंड 50% Y रिसीव करते हैं, एंड फीमेल्स हैव XX क्रोमोसोम, तो केवल एक ही टाइप का एग फॉर्म करते हैं। सिमिलर ओवा हैविंग 1X chromosome each. So sex of the offspring depends on the fertilizing sperm X और Y, क्योंकि देखिए फीमेल्स के पास तो सिर्फ X है। नाउ डिपेंड करेगा मेल, क्योंकि मेल यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन करेगा। अगर मेल का X स्पर्म X के साथ फ्यूज होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ XX, और अगर Y स्पर्म X के साथ फ्यूज होता है देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ XY. XY is male and XX is फीमेल। सो मेल एंड फीमेल जैसे हमने पढ़ा कि XX टाइप के ही गैमीट फॉर्म करेंगे, और फीमेल ने केवल सिंगल टाइप गैमीट फॉर्म किया, और मेल टू टाइप के गैमीट्स फॉर्म करते हैं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द फर्टिलाइजेशन। सो नाउ MCQs. मेल heterogamitic sex determination among the following is XXXO, XXXY, ZOZW, ZWZZ, XXXO, ZWZZ, XXXY and ZWZZ. It is XXXO, XXXY methods. So now फीमेल हेट्रोगैमेटी, अभी हमने पढ़ा मेल हेट्रोगैमेटी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फीमेल हेट्रोगैमेटी। जहां फीमेल हेट्रोगैमेटिक है, फीमेल टू टाइप के गैमीट्स फॉर्म करेंगे, और मेल इज होमोगैमेटिक, मेल सिंगल टाइप के ही गैमीट्स को फॉर्म करेगा। सो फीमेल्स आर हेट्रोगैमेटिक, फीमेल प्रोड्यूसेस dissimilar gametes, heterogametic condition, ZO and ZZ type. So female is ZO and now male is ZZ. Next pattern ZW and ZZ. So males are homogametic. Males are homogametic. That's why they will form single type of gametes. Then female heterogamety. Female produces ova with Z chromosome and ova without sex chromosome. तो यहाँ दो पैटर्न है कि एक जिनमें सेक्स क्रोमोसोम आया है Z और दूसरा जिनमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं है ZO. So now two types of ova, AAZO, AA autosomes, ZO single sex chromosome, and
सेकेंड, अब अगर मेल की बात करेंगे तो मेल सिंगल टाइप का ही गैमीट फॉर्म करेगा, मेल इज होमोगैमेटिक। सो मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म विद द जेड क्रोमोसोम्स ओनली। सो अब यहां पर भी डिपेंड करेगा फर्टिलाइजेशन पर। द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ओवम दैट इज फर्टिलाइज। तो यहां पे मेल और फीमेल के डिटर्मिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? फीमेल। MCQs. ZOZZ method of sex determination is seen in Drosophila, then Protenor, then Legius, then Fumia moth. It is Fumia moth. So, the unpaired Z chromosome in the female determines the sex in butterflies, men, Fumia moth, or reptiles. It is Fumia moth. Now, female heterogamety set 2. Set 2 means ZW and ZZ pattern, female heterogamety. Who decides the sex of the offspring in birds? Female, because female is heterogametic. So, now अगर हम डिस्कस करेंगे, so because the females are heterogametic, ZW, while males are homogametic, ZZ. This system is called ZW-ZZ sex determination. So, female heterogamety. Females produce ova with Z chromosome and ova with W chromosome. Though female is heterogametic, there are two types of eggs, two dissimilar gametes, allosomes, AA, ZW. So male homogametic, male is homogametic because वो single type के ही sperms form करेगा. So male produces sperms with Z chromosomes only, similar gametes. So this method is found in the birds, reptiles, and some fishes. AA, ZZ. AA is autosome, ZZ sex chromosomes. So अब यहाँ पर भी जो फर्टिलाइजेशन है उस टाइम पर डिपेंड करता है कि मेल और फीमेल में से किसका फॉर्मेशन होता है। The sex of the offspring depends on the type of ovum that is fertilized. So bird ZW ZZ मेथड था, फीमेल। तो अगर हम फ्यूजन कराते हैं उनका तो डिपेंड करता है कि Z से ZW फ्यूज हुआ है, देन ZZ फ्यूज हुए हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द हेटेरोगैमेटिक इंडिविजुअल। So now MCQs. Female heterogametic sex determination among the following is XXXO, ZW ZZ, ZW ZZ, ZO ZZ, XXXY or XXXO. Then XXXY, XX and XO. It is ZW, ZZ, ZO and ZZ.